Hello, folks. Hello, students. How are you all? I welcome you all to Let's Crack CBSE 9th and 10th. And this is going to be the day 4 of Arambh and Prachand series. And what are we going to study today? अच्छा, आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के सेकेंड लेक्चर पे हैं. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे एंड लैंड यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी टॉपिक में से आए हुए हैं. ओके, so let's start. I am Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code. If you go for any of the courses on Unacademy, whether it is CBSE class 6 to 12, Foundation and NTSC, or any of the courses, you are going to get a 10% discount by using this code RSYT. Okay, other than that, what do you get when you take the Unacademy subscription? You get the daily live classes. The quizzes are very interactive. You can engage with the teacher, and you can get the free classes as well. Just download the app, you will get the free classes. And अभी मैंने इंग्लिश हमारा एक नया सीरीज जो है स्पेशल पे लॉन्च किया है. एवरी डे मैं आपको स्पेशल क्लासेस में मिलती हूँ 12:30 PM. ओके, whether it is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, every day I am there at 12:30 PM and I teach free of cost. I request all of you to join me in that class. Okay, so you get all the subjects in just one subscription. Step 1 क्या है बच्चों? Step 1 is to download the Unacademy learning app. That is the very first step. Then second step is select the manage goal class 10 and get subscription पे click करिए. Then if you are looking for class 6 to 8 subscription, you have to go for the lower classes. 6 का अगर आप subscription लेते हो तो 6 से 12 तक के सारे access कर सकते हो आप courses. Then select the time duration. Fourth step is use the code. Fifth step is redeem your credits, and here you go. You are ready to join the wonderful journey of learning. Okay. So resource and development is the chapter which we were studying, and before I start, I will just answer the few questions which I have given in my previous class. Okay. So first one was list the problems caused due to the indiscriminate use of resources by human beings. So yes, resources are really very important, but in our previous years we have used it indiscriminately, जिसके चलते क्या हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है. सबसे पहली प्रॉब्लम है डिप्लेशन हुआ है रिसोर्सेज का, एक्यूमुलेशन हुआ है रिसोर्सेज का. कुछ लोगों के पास ही रिसोर्सेज हैं, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है. And it has also led to various global ecological crises like global warming, and there are so many pollution, land degradation. Many of the problems have occurred. Okay. Explain 3 steps that involved in the complex process of resource planning. तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना है हमें इन्वेंट्री को, अपने स्टॉक को सर्वे करना है. देन हमें एक प्लान बनाना है. अब ऐसे ही तो प्लान बन नहीं जाएगा, आपको टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशन सबको यूज़ में लेकर के प्लान बनाना पड़ेगा. और एक बार प्लान बना लिया तो प्लान को क्या करेंगे हम? क्रॉस चेक. ठीक है, तो हम प्लान को ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ चेक करेंगे. ओके, how far it is correct to say the availability of resources is a necessary condition for development of any region? किसी भी रीजन को डेवलप करने के लिए क्या रिसोर्सेज का वहाँ पे होना ज़रूरी है? So no, it is not necessary. Other than resources also, we need many more things, like we need technology, we need institutions, then only we can develop. Okay, so there are many places in India as well जहाँ पे बहुत सारे resources हैं, but they are economically backward. There are some places जहाँ पे resources नहीं है, फिर भी वो बड़ा अच्छा grow कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा कैसे? ऐसा possible है with the use of technology, institution, human resources and all these. So state of Orissa and Jharkhand have got a lot of resources, बट अगर हम कंपेयर करें तो ये थोड़े इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं. पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहाँ रिसोर्सेज कम है, बट स्टिल वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है. ओके किड्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट अ चैप्टर विद द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है भाई? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्यों ज़रूरी है कंजर्वेशन. सो द आंसर इज़ दैट कि हम लोगों ने एक्चुअली में रिसोर्सेज को इतने टाइम तक इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया है. राइट, हमने अभी पहले ही देखा. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज वी आर इनसेंसिटिव टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और अगर हमें एनवायरनमेंट को बचा के रखना है तो कंजर्वेशन करना ज़रूरी ही है. ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मे लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स.
इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, इससे अच्छा है कंजर्वेशन कर लो, ठीक है। कंजर्वेशन होता क्या है, इट इज़ नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब ये 3R 5R वाला तो तुम लोगों ने बचपन में ही बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, राइट। हर छोटी छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर, गांधी जी ने क्या कहा था रिसोर्स के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए। गांधी जी ने कहा देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ओके, जो हमारी नेचर है, मदर नेचर है, उसके पास बहुत सारा रिसोर्स है, ठीक है। एंड वो रिसोर्सेज जो हैं वो सबके नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम लालची हो जाते हो, ठीक है, अगर तुम सोचते हो कि यार हम तो ऐश करेंगे, सारे रिसोर्सेज पे हम ही ऐश करेंगे अकेले, then mother nature is not able to fulfill those needs, okay। इसके अलावा गांधी जी जो हैं वो ग्रीडी एंड सेल्फिश लोगों के बिल्कुल अगेंस्ट थे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हैं। जैसे कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, पहले 50 कार बनाता था, मैन्युफैक्चर करता था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। नाउ ही इज़ यूजिंग 500 ही इज़ प्रोड्यूसिंग 500 कार्स, 500 मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो कार्स की। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्स जो है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स आप ज़्यादा यूज़ करोगे। 10 टाइम्स स्पीड से इंसान तो नहीं काम कर सकता, तो आप क्या करोगे, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन कैसे होता है बच्चों, मास प्रोडक्शन इज़ डन बाय द मशीन्स। मशीन्स को यूज़ में लोगे तो लोग अनएम्प्लॉयड होने लग जाएंगे, ओके। दैट इज़ वाई गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन बाय मासेज। लोग काम करने चाहिए, मशीन नहीं, ऐसा गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू था। कितना ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ व्यू था, राइट। ये चीज़ हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, सीखना है, समझना है, अपने ज़िंदगी के अंदर इसको इस्तेमाल में लेना है, क्योंकि कल को तुम लोग भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनोगे, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ओके। ना अगर हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल के अंदर हम लोगों ने कितना कंजर्वेशन किया है, ठीक है। हम ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो हमने कितना प्रोग्रेस किया है वो देखते हैं। तो 1968 के अंदर क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहले सिस्टमेटिक डेवलपमेंट की बात की थी। देन 1974 के अंदर गांधीयन फिलॉसफी को पब्लिश किया गया था। सुमैशर की एक बुक है स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल, उसके अंदर 1987 में बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट बनी थी, जिसके अंदर सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाया गया था और ग्लोबली सबके सामने प्रेजेंट किया गया था। लेटर ऑन एक बुक है आवर कॉमन फ्यूचर, उसमें भी इस चीज़ को इंक्लूड किया गया। एंड 1992, ये तो आप लोगों ने पहले वाले क्लास में ही पढ़ा था, फाइनली अर्थ समिट हुआ, जहाँ पे वर्ल्ड के 100 टॉप लीडर्स आए और उन्होंने एजेंडा 21 डिसाइड किया, ओके। सो these were all the timeline. Now let us move ahead with one question. There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. Okay, आपको आंसर करना है and you are going to get 5, 4, 3, 2, 1 on your mark, get set, go. I think easy है, Mahatma Gandhi. Okay, very good. Now let's move to the next topic, which is land resources in India. अब देखो इंडिया जो है ना, इंडिया के पास बहुत सारी ज़मीन है, ओके। टू बी एग्जैक्ट वी हैव गॉट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड, ओके। अब ये जो इतनी सारी ज़मीन है हमारे पास, इसमें बहुत सारा वैरायटी भी है। हमारे पास ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हमारे पास प्लेन्स हैं, हमारे पास पठार हैं, प्लेट्यूज़ हैं, हमारे पास छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स भी हैं, ओके। तो जिसमें से अगर हम अच्छे से ध्यान दें तो हमें पता चलता है हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या है बच्चों, हमारे पास सबसे ज़्यादा प्लेन्स हैं। वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव सच ह्यूज प्लेन्स। वाई? बिकॉज इंडिया जो है वो नदियों का देश है, ठीक है। और नदियाँ क्या करती हैं, मिट्टी डिपॉजिट करती हैं, तब जाके प्लेन्स बनता है। और इतना फर्टाइल मिट्टी वो डिपॉजिट करती हैं कि ये प्लेन्स हमें किस में यूज़ करते हैं, हम ये प्लेन्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री को सेटअप करने में, ओके। देन वी हैव गॉट ऊंचे ऊंचे पहाड़, ओके। सो दैट इज़ 30%। अब वो पहाड़ कहाँ पे काम आते हैं, माउंटेन्स कहाँ पे काम आते हैं, ट्रेकिंग करने में काम आते हैं, हाँ। टूरिज़्म के लिए काम आते हैं, हाँ। लेकिन इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि ये हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरेनियल रिवर्स, ये जो सदाबहार नदियाँ बहती रहती हैं, राइट। तो उनको वो क्या करते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि माउंटेन्स का टॉप जो है वो ग्लेशियर्स से ढका होता है। जब ग्लेशियर्स पिघलती हैं तो हमें पानी मिलता है, ठीक है, नदियों के अंदर पानी मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज़ प्लेट्यूज़। प्लेट्यूज़ जो हैं वो लगभग 27% है हमारे पास। और प्लेट्यूज़ जो हैं वो बनी कैसे हैं बच्चों,
तो वो वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से बनी है। जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो बहुत सारा जो मैग्मा है वो बाहर आएगा, लावा कहलाएगा, लावा ठंडा होगा, तब जा करके प्लेट्यू बनेंगे। तो जब धरती से मैग्मा बाहर आता है तो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स भी लेकर आता है। ओके, सो दैट इज़ वाई दीज प्लेट्यूज आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स फॉर अस। ओके, तो यहाँ हमें समझ आ गया कि अपने पास बहुत ही यूज़फुल ज़मीन है। ठीक है, लेकिन ज़मीन का यूसेज जो है ना, वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि लैंड को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था हमारे इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, लेकिन इसमें से जो रिपोर्टिंग एरिया है दैट इज़ जस्ट 93% ऑफ द टोटल एरिया, दैट मीन्स 3.0405 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसका हम लैंड यूज़ पैटर्न जो है वो हम पढ़ते हैं। वाई? बिकॉज रेस्ट ऑफ द 7% एरिया इज़ आइदर डिस्प्यूटेड और उसको हम लोग सर्वे नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट लैंड यूज़। ओके, तो ये जो जोग्राफिकल एरिया है दैट इज़ गिवन बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। ऑन द अदर हैंड लैंड यूज़ के लिए जो हमें एरिया मिलता है वो हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट देता है और उसको हम रिपोर्टिंग एरिया कहते हैं। ठीक है, अब रिपोर्टिंग एरिया का ही लैंड यूसेज हमें यहाँ पर पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो बच्चों, ज़मीन जो है उसका यूसेज किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? कैन यू गेस? आई थिंक यू हैव गेस्ड इट राइट। फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ज़मीन की टोपोग्राफी कैसी है, ज़मीन जो है वो ऊंचा है, फ्लैट है, माउंटेन है, प्लेन है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का सॉइल टाइप कैसा है। ओके, देन ऑल्सो दे आर ह्यूमन फैक्टर्स विच डिसाइड द यूसेज ऑफ लैंड, विच इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, टेक्नोलॉजी कैसी है, कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है। हमारे यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, हम तो अपनी धरती को ही माता मान कर चलते हैं, राइट? तो ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है लैंड का यूसेज कैसा होगा। ओके, नाउ थोड़ा सा शांति से अगर हम बैठ करके सोचें और एक बार अपने दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि यार ज़मीन तो हम कितना ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं, राइट? हम जो हैं वो ज़मीन पे हॉस्पिटल बनाते हैं, हम ज़मीन के ऊपर ब्रिजेस बनाते हैं, रोड बनाते हैं, रेलवेज़ बनाते हैं, तो हम लोग ऐसे यूज़ में ले रहे हैं। हॉस्पिटल, स्कूल्स, एवरीथिंग इज़ ऑन द लैंड। ऑन द अदर हैंड किसान भी है, वो भी ज़मीन को यूज़ में ले रहा है। वो कैसे यूज़ में ले रहा है? वो खेती करके यूज़ में ले रहा है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी ज़मीन को यूज़ में ले रहे हैं, इतने सारे जंगल हैं हमारे पास। जानवर भी ज़मीन को यूज़ में ले रहे हैं। कैसे? एक तो वो उनका भी घर है, जैसे हमारा घर है धरती, वैसे ही उनके लिए भी वो घर है, एंड एट द सेम टाइम वो पैस्चर लैंड्स की तरह भी यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है, सो दे आर प्लेंटी ऑफ यूजेस ऑफ लैंड रिसोर्स। ओके, और लैंड रिसोर्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी में अवेलेबल है और इसको हम लोगों को कैसे यूज़ में लेना है? बहुत सोच समझ के यूज़ में लेना है। ठीक है, तो इट इज़ अ रिसोर्स ऑफ फाइनाइट लेंथ। ओके, तो हमें बहुत ध्यान से यूज़ में लेना है इसको। ओके, नाउ किड्स लेट अस सी क्या क्या तरीके से हम यूज़ में ले रहे हैं अपने ज़मीन को। तो बच्चों, सबसे पहला, एज आई हैव टोल्ड यू, इंसान जब सबसे पहले धरती पे आया, जब वो अर्ली मैन था, तो कहाँ रहता था बताओ? तब वो रहता था फॉरेस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला यूज़ ही क्या है ज़मीन का? जंगल। देन वी हैव लैंड पुट अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, एज वी कैन से मॉडर्न मैन कहाँ रह रहा है? ज़मीन पे रह रहा है, नई नई चीज़ें बना रहा है। तो अर्ली मैन फॉरेस्ट में रहते थे, मॉडर्न मैन घर में रह रहे हैं, अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बहुत सारे नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ हैं। ठीक है, बट देयर आर ऑल्सो सर्टेन लैंड जिसको हम लोग यूज़ ही नहीं कर सकते। क्यों? मे बी बिकॉज ऑफ फिजिकल फैक्टर्स ही ऐसे हैं भाई। रेगिस्तान है, कैसे यूज़ में लें? वो बैरन लैंड हो गया, वेस्ट लैंड हो गया। ठीक है, तो हम अगर रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ज़मीन जो है वो वेस्ट लैंड है, लेकिन हाँ, अगर इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑफकोर्स इकोलॉजी के अंदर हर चीज़ का क्या होना चाहिए? हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। ओके, then we have areas under permanent pastures land, we have area under miscellaneous tree crops and groves। मतलब कभी कभी आप जाते हो ना रोड से या ट्रेन से जा रहे होते हो तो आपको बहुत सारी जगह पे ऐसे ही ट्री क्रॉप्स दिख जाती हैं, ग्रूव्स दिख जाती हैं, वो हम सब ने नहीं लगाए होते, वो अपने आप उग जाते हैं। ठीक है, तो इसको हमने नेट शोन एरिया में नहीं इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, ये अपने आप उग गए हैं, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। देन वी हैव कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब ऐसी ज़मीन जिस पे हम
जो है तो वेस्ट लैंड, लेकिन हम उस पर खेती कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। देन वी हैव करंट फैलो, फैलो अदर देन करंट फैलो एंड नेट शोन एरिया। अब मैं ये सब एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में। सो फॉरेस्ट क्या है बच्चों? वो एरिया जहाँ पे जंगल हैं, ठीक है। अब फॉरेस्ट के अंदर सिर्फ वही एरिया नहीं आता, ऐसा एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट ग्रोथ पॉसिबल है वो भी आ जाता है, ठीक है। एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट इज द एरिया विच गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड एंड डीमार्केटेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ। ओके, क्योंकि देखो जंगल तो बन भी रहे हैं और जंगल कट भी रहे हैं, तो रोज़ रोज़ तो हम जा कर के सर्वे नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए क्या किया है, ऐसा एरिया जो फॉरेस्ट की ग्रोथ जहाँ पे पॉसिबल है उन सबको हमने कंसीडर किया हुआ है। अब एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952, 33% एरिया जो है किसी भी कंट्री के अंदर वो क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर्ड होना चाहिए, फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ओनली, ज़मीन के ऊपर कितनी सारी चीज़ें बना रखी हैं इंसानों ने, तो ये जो यूसेज है ये लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज हुआ। ओके, नाउ बैरन एंड वेस्टलैंड बच्चों, वो जगह जहाँ पर एक्चुअली में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते हम विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। ओके, जैसे रेगिस्तान है, टेक्नोलॉजी तो है लेकिन हम रेगिस्तान में खेती तो नहीं कर सकते, राइट। डेजर्ट लैंड है, हिली टेरेन्स है, तो ये सारे आ गए हमारे बैरन लैंड्स के अंदर। सिमिलरली वी हैव एरिया अंडर परमानेंट ग्रेजिंग लैंड्स, ऐसे एरिया जहाँ पे ये क्यूट गाय भैंस क्या कर रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं। ओके, तो ये जो एरिया होता है ये मोस्टली विलेज कॉमन्स जो हैं वो ओन करते हैं। ओके, ये स्लाइड में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं नोट सेंड करूँगी टेलीग्राम पे, वहाँ पे दिख जाएगा आपको। ओके, now area under miscellaneous tree crops which is not included in net shown area, the land under orchids and fruit trees are included in this category। और ये कई बार जो बड़े बड़े प्लांटेशन वर्कर्स होते हैं वो भी ओन कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ कल्चरेबल वेस्ट लैंड, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, ये क्या होते हैं, ऐसे वेस्ट लैंड, एनी लैंड विच इज़ लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 years। अगर 5 साल से ज़्यादा हमने किसी ज़मीन पर खेती नहीं की तो वो किस में चला जाएगा, कल्चरेबल वेस्ट लैंड में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको रिक्लेम करके वापस से यूज़ में ले सकते हैं। देन वी हैव करेंट फैलो लैंड। करेंट फैलो लैंड कौन सी है, दिस इज़ द लैंड विच इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 year। ऐसी ज़मीन जिसको 1 साल से कम हमने क्या किया है, यूज़ में नहीं लिया। जैसे आप ये पिक्चर के अंदर देख सकते हो, बच्चों की बहुत सारी फील्ड है लेकिन ये बीच में एक एरिया है जहाँ पे कुछ खेती नहीं हो रही है, या यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ हमने क्या किया है, हमने कल्टीवेशन नहीं किया है। वाई, सो दैट हमने ज़मीन को थोड़ा सा रेस्ट दिया है, तुम आराम कर लो ज़मीन को, हम बोल रहे हैं। और जब थोड़े से वापस से फर्टिलिटी आ जाएगी तो हम वापस खेती कर लेंगे उस पर। ओके, सो दिस इज़ करेंट फैलो। देन वी हैव फैलो अदर देन करेंट फैलो। ये क्या होता है, ऐसी ज़मीन जिसको हम 1 से 5 साल तक अगर हमने इस पर कोई खेती नहीं की है तो ये फैलो अदर देन करेंट फैलो हो जाता है, ठीक है। तो हम इस पर भी खेती कर सकते हैं बट ड्यू टू एनी रीज़न हमने यहाँ पे खेती नहीं की है। सो वी हैव गॉट कल्चरेबल वेस्ट लैंड ग्रेटर देन 5 years, 1 to 5 year फैलो अदर देन करेंट फैलो, एंड लेस देन 1 year अगर है तो करंट फैलो के अंदर आएगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट इज नेट शोन एरिया, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, नेट शोन एरिया क्या होता है, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन। अभी जैसे आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे सेम ज़मीन है, ठीक है। पहली बार क्या किया, सेब उगाया, दूसरी बार क्या किया, मिक्स्ड फार्मिंग की, तीसरी बार क्या किया, कुछ और फूड क्रॉप उगाया। ओके, तो नेट शोन एरिया क्या होगा, सपोज करो ये ज़मीन जो है वो कितनी की है, 1 hectare की है, ठीक है। और एक एग्रीकल्चरल ईयर में हमने 3 बार खेती कर ली, तो नेट शोन एरिया जो है ना इसका 1 hectare ही रहेगा, क्योंकि इस लैंड का फिजिकल एक्सटेंट तो 1 hectare ही है ना, ठीक है। लेकिन यही अगर हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करें, हमने 3 बार खेती की है, एक बार सेब उगाया है, दूसरी बार मिक्स्ड फार्मिंग की है, तीसरी बार फूड क्रॉप उगाया है, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या हो जाएगा, 3 hectares। ओके, अब ये नेट शोन एरिया का ना बड़ा अजीब सा पैटर्न आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ पे 80% नेट शोन एरिया है, जैसे पंजाब, हरियाणा, एंड दे आर सर्टेन स्टेट्स जहाँ पे 10% से भी कम है नेट शोन एरिया, अरुणाचल प्रदेश, मिजो, मनी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, तो ये हमारा नेट शोन एरिया हो गया। नाउ लेट अस सी some questions. How much desired area is required for forest in the country?
5, 4, 3, 2, 1. Here we go. 33% as per National Forest Policy of 1952. Now land degradation. जब हमारे ज़मीन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, डिटीरियोरेट हो जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो भैया ये लैंड डिग्रेडेशन कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? तो वही गांधी जी की कहानी फिर से आ जाती है। ग्रीडी और सेल्फिश लोगों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर करके लैंड को क्या कर दिया है? डिग्रेड कर दिया है। एंड लोग जो हैं वो मास प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं अगेन, ठीक है? वो जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाह रहे हैं सेम ज़मीन के ऊपर, तो भैया लैंड का तो डिग्रेडेशन होगा ही होगा। बट ऐसा नहीं है कि हम इसको रोक नहीं सकते, लैंड डिग्रेडेशन को बिल्कुल रोक सकते हैं, ठीक है? रोकने के लिए क्या करना होगा? अपने पास इतना बड़ा देश है, हर देश के हर स्टेट में क्या प्रॉब्लम है लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो सल्यूशन तो चुटकियों की काम है, राइट? तुरंत पता चल जाएगा हमें। ओके बच्चों, तो बहुत सारे एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पे वाटर और विंड से ही लैंड इरोजन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है? बट देयर आर सर्टेन स्टेट्स जहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, जैसे छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, उड़ीसा के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? हम लोग माइंस जो है ना, माइंस से मिनरल तो निकाल लेते हैं लेकिन माइंस को फिर वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है? तो इससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के अंदर होता क्या है? खेती बड़ी अच्छी होती है लेकिन ज़मीन को हम ओवर इरिगेट करते हैं, जिसके चलते क्या होता है? सैलिनिटी और अल्कलिनिटी बढ़ जाती है सॉइल की। ऐसे ही गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में क्या प्रॉब्लम है भैया? ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है? ऐसे ही और भी कई सारे रीज़न हैं। हम वेस्ट वाटर ऐसी ज़मीन में डाल दे रहे हैं, मिनरल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, जैसे कि लाइमस्टोन है या मार्बल है, सीमेंट निकाल रहे हैं, हम सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन निकाल रहे हैं। ऐसे में क्या होता है? हम मशीन से बड़ा ज़्यादा ग्राइंड करते हैं रॉक्स को, जब मुझे क्वारी करना पड़ता है, इसको हम क्वारिंग प्रोसेस करते हैं कहते हैं, ठीक है? जब क्वारिंग होता है ना तो रॉक्स को ग्राइंड करते हैं हम, जिससे बहुत सारा डस्ट इकट्ठा होता है और वो डस्ट अल्टीमेटली क्या करता है? जा कर के हमारे मिट्टी में मिलता है। उसके चलते मिट्टी जो है वो इनफिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है। मिट्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वाटर है, ओके? मिट्टी जो है बच्चों वो 4 कंपोनेंट से बनी हुई है। एक तो पेरेंट रॉक, ओके, देन वी हैव गॉट एयर, वाटर एंड जितने भी अपने माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सॉइल का। अब हम जो डस्ट जो हम डालते जाते हैं ज़मीन के ऊपर, सीमेंट इंडस्ट्री में या लाइमस्टोन वगैरह इंडस्ट्री में, वो पूरा का पूरा हमारे ज़मीन के ऊपर डस्ट क्रिएट कर देता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, उससे इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर नहीं हो पाता, ओके? तो दिस इज़ अबाउट लैंड डिग्रेडेशन। अब इसको रोकेंगे कैसे? रोकने के भी कई तरीके अपने पास। तो हम लोग एफॉरेस्टेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। इरिगेशन जो है वो एक प्रॉपर वे में करें हम। शेल्टर बेल्ट्स लगाएं हम, ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओवर ग्रेजिंग जो है उसको कंट्रोल करें। जहाँ पे भी एरिड रीजन्स हैं वहाँ पे थॉर्नी बुशेस लगाएं। एंड बच्चों इसके अलावा वेस्ट लैंड को आप मैनेज करो, माइनिंग एक्टिविटीज़ बेटर करो, इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट्स को ट्रीट करके फिर ज़मीन में डालो तो आपका लैंड कंजर्वेशन हो जाएगा, ओके? तो ये मैं यहाँ पे पॉइंट्स में इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मुझे आपको नोट्स दूंगी तो वो पढ़ने में आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है? इसलिए इतना पिक्चर लगा लगा के ब्यूटीफुल नहीं बनाया मैंने प्रेजेंटेशन, बिकॉज मुझे लगा ये डेटा देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तुम लोगों को, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आई विल शो यू द पिक्चर्स ऑल्सो, ओके? मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन में। Okay, in which of the following states is overgrazing responsible for land degradation? अभी जल्दी से बता दो बच्चों। 5, 4, 3, 2, 1। अभी जस्ट बताया मैंने आपको, राइट? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, ओके? सो द आंसर इज मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ओके? ये क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले मेरे लेक्चर से है। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन आर नोन एज। 5, 4, 3, 2, 1। क्या है आंसर? ए, बी, सी, डी में से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बच्चों? सो द आंसर इज डेवलप्ड रिसोर्सेज, ओके? नाउ हियर इज अ स्मॉल होमवर्क फॉर यू ऑल माय डियर किड्स। आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं ईमानदारी से, ठीक है? हाउ इज ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? क्या फ़र्क पड़ा है वहाँ पे
सॉइल के ऊपर. हाउ इज सीमेंट इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन. क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. So this is your homework. And my dear kids, ये आरंभ एंड प्रचंड सीरीज़ है, इसको आप देखते रहिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. न्यू सीरीज़ जो है प्लस पे भी आ रही है क्वेश्चन एंड आंसर की ऑन थर्सडे. So just go and grab the subscription using the code RSYT. Okay, and other than that कल ही मेरी सीरीज़ जो है, मतलब आज बोल सकते हो 12:30 से 12:30 से इंग्लिश स्टार्ट हो गई है. ओके, तो इसको आप स्पेशल क्लासेस पे ज्वाइन करना मत भूलना. एवरी डे एट 12:30 आई कम ऑन स्पेशल क्लासेस एंड आई विल शेयर द लिंक इन द कमेंट बॉक्स इज वेल. ओके ओके बच्चा पार्टी, आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, CBSE क्लास 10 सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, RSYT कोड यूज़ करना है एंड मुझसे पढ़ने आ जाना है. ओके, ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो. And if you are benefited from this lecture, give a thumbs up, use the code RSYT to take the subscription, like, share and subscribe. Hit the bell icon as well. Bye bye. Thank you.